Hello everyone. We are starting with chapter number 11, Biotechnology, Principles and Processes. This is the first video of the chapter, class 12th, Biology. In this video, we are going to cover the following topics. We'll see the principles of biotechnology, we'll see the tools of recombinant DNA technology, and among the tools, we'll study the restriction enzymes in detail in this video. Biotechnology, principles and processes. First of all, let us see what is biotechnology. Biotechnology is the technique of using live organisms. So in this we are using live organisms or their enzymes. For what we are using these? For making products and processes useful to human beings. This is called as biotechnology, okay, where we are using living organism for making the products and processes which are useful for the human beings. In this sense, अगर हम ये बात देखें कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. तो इसका मतलब है मेकिंग ऑफ कर्ड, ब्रेड, वाइन, इसमें भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं. वी यूज़ माइक्रोब्स फॉर मेकिंग दीज. क्या ये भी बायोटेक्नोलॉजी में आ सकता है? बायोटेक्नोलॉजी को हमने थोड़ा सा अलग कर लिया है इनसे. उसके अंदर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस एंड फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट्स. दिस इज द मेन डिफरेंस between the normal making of curd or bread or wine processes where the microbes are used and in the biotechnology. In biotechnology, basically we are using genetically modified organisms, GMO, okay, for getting the products, for having the different processes which are related with the human beings. What are the other processes and techniques which come under biotechnology? In vitro fertilization, it is written in front of you, test tube baby program, synthesis and using of a gene, preparation of DNA vaccine, correcting a defective gene. All these processes also come under biotechnology. European Federation of Biotechnology defines biotechnology as the integration of natural science and organisms and cells and parts of the cells and molecular analogues. In सबका integration, we combine all these things together for getting the products and services. So this is the modified definition of biotechnology by European Federation of Biotechnology. What are the two main core techniques of modern biotechnology? कौन सी टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर? दो टेक्निक्स हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग? इसके अंदर हम जेनेटिक मटेरियल को चेंज करते हैं, केमिकली उसको ऑल्टर कर देते हैं, बदल देते हैं डीएनए और आरएनए को, और उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, so that you find the change in the phenotype of the host. होस्ट का phenotype, होस्ट का structure बदल जाता है by introducing the genetic material which we have already changed. Bioprocess engineering. इस engineering के अंदर हम sterile condition देते हैं to the microbes. जो माइक्रोब ग्रो हो रहे हैं उनको हमें स्टेराइल कंडीशन देनी है, यानी वहाँ पर कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, सो दैट दे कैन ग्रो इन अ लार्ज क्वांटिटी. एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, व्हाई डू वी डू दिस? फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स एंड एंजाइम्स. सो वी आर ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स इन अ स्टेराइल कंडीशन. दिस कम अंडर बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग. So these are the two main core techniques of modern biotechnology. यहाँ पर आपके सामने एक पूरा ओवरव्यू दिया गया है जो इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं. बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी.
3 फिगर्स हैं आपके सामने। फर्स्ट फिगर में देयर इज अ पर्सन हैविंग अ हेयर ऑन द हेड। सेकेंड डायग्राम जो है दिस इज ऑफ अ टैक्सी एंड थर्ड इज अ पर्सन, नंबर 2 पर्सन है वो हु इज नॉट हैविंग द हेयर ऑन द हेड। अब हम चाहते हैं कि सेकेंड पर्सन को भी हेयर मिल जाए अपने हेड पर, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट पर्सन के जीन्स लेंगे। विल टेक द जीन्स फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन विच विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हेयर। उसको हम शिफ्ट करेंगे टू द होस्ट पर्सन, टू द सेकेंड पर्सन। हाउ? बाय यूजिंग द टैक्सी और अ वेक्टर। इस जीन को शिफ्ट कर देंगे टैक्सी में और टैक्सी विल टेक द जीन टू द होस्ट पर्सन। नाउ द होस्ट पर्सन जो सेकेंड पर्सन है उसके हेड पर भी हेयर ग्रो हो जाएंगे, बिकॉज इट इज नॉट द आर्टिफिशियल ग्रोइंग ऑफ हेयर ऑन द हेड, वी हैव डन चेंज इन द जीन्स एंड ड्यू टू चेंज इन द जीन्स द पर्सन इज एबल टू गेट द हेयर ऑन हिज हेड। और अगर चेंज हो गया है जीन्स के अंदर तो डेफिनेटली ये आगे प्रोजनी में भी पास ऑन होगा। एंड द पर्सन इज नाउ कॉल्ड एज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हमने उसके जीन्स को मॉडिफाई कर दिया है, चेंज कर दिया है। सो दिस इज द मेन प्रोसेस विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। यही हमारा मेन पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन रहेगा इस चैप्टर के अंदर। लेट अस सी द बेसिक स्टेप्स टू गेट द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को लेने के लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप हैं। पहला स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द डीएनए विद द डिजायरेबल जीन। जो जीन हमने चेंज करना है, जो जीन हमें चाहिए ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको पहले आइडेंटिफाई करिए एंड सेकेंड स्टेप पर उसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए इनटू द होस्ट। एंड थर्ड स्टेप पर इंट्रोड्यूस करने के बाद उसको मेंटेन करिए जो हमने डीएनए को इंट्रोड्यूस किया है, ताकि वो आगे प्रोजेनी में उस जीन को ट्रांसफर कर सके। ओके, सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ गेटिंग genetically modified organism. First, identification of DNA with a desirable gene. एक टेक्निक हमने पढ़ा है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज दिस? इसके अंदर हम एक हाइब्रिड वैरायटी को लेना है। कैसे लेना है? हमने 2 ऑर्गेनिजम्स ले लिए विद द डिजायरेबल कैरेक्टर। दोनों में कोई ना कोई एक गुड कैरेक्टर है जो हम हाइब्रिड में चाहते हैं, उनमें मेटिंग हुआ एंड आफ्टर दैट वी गेट द हाइब्रिड एंड हाइब्रिड इज गेटिंग नाउ द डिजायरेबल जीन्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, बट along with the desirable genes the hybrid may also get some undesirable genes in a traditional hybridization method. तो क्या करना चाहिए? यहाँ पर काम आता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि हम सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल जीन्स को ही ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। वी डू नॉट वांट अनडिजायरेबल जीन टू गो इनटू द हाइब्रिड, टू गो इनटू द ऑर्गेनिज्म। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्ले द रोल हेयर। पॉइंट नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब हमें इंट्रोड्यूस करना है। कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम है आपके सामने, बैक्टीरिया का डायग्राम है एंड बैक्टीरिया इज हैविंग अ प्लाज्मिड. Plasmid is a circular extra chromosomal material present in the bacteria, and these plasmids act as a vector, act as a taxi. जो डिजायरेबल जीन था इस प्लाज्मिड के साथ हमने अटैच कर दिया। डायग्राम देखिए नंबर 2 सेकेंड लेवल पर जो डायग्राम है, यहाँ पर वो प्लाज्मिड जिसके साथ हमने डिजायरेबल जीन को अटैच किया है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, एंड दिस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज देन इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट। यहाँ पर होस्ट क्या है? ई कोलाई, बैक्टीरिया है। नाउ द बैक्टीरिया इज ट्रांसफॉर्म्ड, चेंज हो गया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया। ओके, सो दिस इज हाउ वी इंट्रोड्यूस द डीएनए इनटू द होस्ट बाय यूजिंग अ टैक्सी, by using a vector. Detail about the vectors we'll study in the next video. Third is, we want to maintain the introduced gene, introduced DNA in the host, and we want the transfer of the DNA to its progeny. This is the third step. Okay. अब important points और क्या है यहाँ पर कि a piece of aligned DNA has no sequence called ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने डीएनए का पीस
डिज़ायरेबल जीन का निकाला, उसके पास उस जीन में ओराए नहीं है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, तो वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता. सो इट कैन नॉट मल्टीप्लाई itself in the progeny cells of the organism. तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इस अलाइन डीएनए को इंटीग्रेट करना पड़ता है इनटू द रेसिपिएंट जीनोम, जो जिसके पास ओराई हो. यहाँ पर एक PPR 322 का डायग्राम बना हुआ है, जहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पिंक कलर से शेडेड पार्ट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है. अगर हम यहाँ पर अपना जीन को अटैच कर देंगे तो वो मल्टीप्लाई करेगा अलॉन्ग विद द PBR 322. Hence, align DNA is integrated into the recipient genome and it multiplies and inherit along with the host cells. Okay, वहाँ पर ये multiply करेगा, inherit करेगा into the host cells. So, what is recombinant DNA technology? The word is recombinant. जैसे कि हमें प्लाज्मिड मिला था चेंज स्टाइल का, तो वो recombinant है. द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग, जहाँ हमने ज्वाइन किया है, इंसर्टिंग अ फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इनटू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म. होस्ट ऑर्गेनिज्म में हमने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया है इनटू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस, ताकि हमें न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिल सकें. दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. एंड फर्स्ट artificial recombinant DNA was made by Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1972. कहाँ से लिया उन्होंने जीन? They were studying on the Salmonella typhimurium, और Salmonella typhimurium के पास एक नेटिव प्लाज्मिड है जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं. उसमें से छोटा पीस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का निकाल लिया है, जैसे लाइट ब्लू कलर का यहाँ पर दिखाया गया है, और इसको ज्वाइन किया गया विद द प्लाज्मिड. प्लाज्मिड में ज्वाइन करने के लिए प्लाज्मिड का भी छोटा पीस काटना पड़ा वहाँ पर स्पेस बनाने के लिए, और उसको दोनों को फिक्स कर दिया गया. और जब दोनों प्लाज्मिड और जो डिज़ायरेबल जीन था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम द सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इन दोनों को जब फिक्स कर दिया, इकट्ठा कंबाइन कर दिया, देन द प्लाज्मिड इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. कौन कौन से एंजाइम का यूज किया गया इस प्रोसेस के अंदर? वन एंजाइम था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसने हेल्प किया कटिंग करने के लिए डीएनए के पार्ट्स को या प्लाज्मिड को. एंड एक एंजाइम यूज हुआ डीएनए लाइगेजेस, जिस एंजाइम ने इन दोनों डीएनए के पीसेस को ज्वाइन किया प्लाज्मिड को विद द डिज़ायरेबल जीन. ओके, सो डायग्राम आपके सामने है, एंजाइम्स आपके सामने है यूज, और इन एंजाइम्स का यूज करके फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हुआ. इस डीएनए को, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो तैयार हुआ हमारे पास, उसको हमने शिफ्ट किया इनटू द ई कोलाई, बैक्टीरिया के अंदर शिफ्ट किया ताकि वहाँ मल्टीप्लाई कर सके फॉर द रेप्लिकेशन, वेयर मैनी कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इज फॉर्म्ड. बहुत सारी कॉपी बनाने के लिए इसको हमने ई कोलाई में शिफ्ट कर दिया, जहाँ पर ई कोलाई में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था उसका इस्तेमाल हुआ और बहुत सारी कॉपीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की तैयार हुई. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज क्लोनिंग. So this is how the first artificial recombinant DNA was made. Now come to the tools of recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology में कौन कौन से tools का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पर there are three things which we use for recombinant DNA technology. I am using the word recombinant DNA technology. First है restriction enzymes, मॉलिकुलर सीजर्स भी कहते हैं, और डायग्राम में भी आप देखो सीजर ही बना हुआ है जो डीएनए को कट कर रहा है. सेकंड है वेक्टर, जो इस डीएनए के पीस को लेकर होस्ट में जाएगा. यहाँ डायग्राम बना हुआ है PBR 322 का, इसका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में स्टडी करेंगे. थर्ड है हमारे पास कॉम्पिटेंट होस्ट, जहाँ पर ये जो जीन था उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ टैक्सी. क्लियर? सो
about the vector and about the competent host we'll study in the next video, and in this video we are concentrating more upon the restriction enzymes. So these are the three tools which are used in the recombinant DNA technology. Restriction enzymes, they are also called as molecular scissors. They cut the DNA at a specific sites into fragments. DNA को काट देता है but at particular site, and they are called as nucleases. These enzymes are called as nucleases. In 1963, two enzymes responsible for restricting growth of bacteriophage in E. coli were isolated. दो एंजाइम को हमने आइसोलेट किया इन 1963 में, और जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे. दैट्स वाई द नेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. द वर्ड इज कमिंग फ्रॉम हेयर, रिस्ट्रिक्शन. दे आर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई. और उसमें से वन एंजाइम क्या कर रहा था, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता था डीएनए में, और सेकेंड एंजाइम जो था वो डीएनए को कट कर देता था. जो सेकेंड एंजाइम था उसको कहा गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस और मॉलिक्यूलर सीजर्स. अभी तक मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया. नाउ लेट अस सी हाउ वी नेम द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. यहां पर नाम लिखा गया EcoR1. EcoR1 में जो E है, द फर्स्ट लेटर इंडिकेट्स द जीनस, जहां से ये एंजाइम तैयार हुआ है. E is a genus, CO is a species, okay, and R is a strain from which it is made, from which it is isolated, and 1 is the Roman number. और ये कौन सा नंबर है, the order in which enzymes were isolated from the strain of bacteria. किस नंबर पर ये isolate किया गया एंजाइम. तो this is how we do the naming of restriction enzymes. Let us see the types of restriction enzymes. There are two types of restriction enzymes, exonucleases and endonucleases. Exonucleases are those enzymes which cut the DNA from ends, from two ends. दोनों साइड से कट करेंगे, वो दोनों कॉर्नर से कट करेंगे डीएनए को, exonucleases. While the endonucleases they cut at specific position within DNA. डीएनए के बीच में से ये कट करेंगे. और ये क्या करते हैं, दे बाइंड टू अ स्पेसिफिक साइट. एक पर्टिकुलर साइट पर ही जाकर वो अटैच होते हैं, और उस साइट को जहां पर जाकर अटैच होंगे और वहां से कट करेंगे, दैट साइट इज कॉल्ड एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ द डीएनए. और इसके बाद डीएनए दो पीसेस में कट हो जाएगा. फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज HindII. और ये HindII कहाँ से काट रहा है डीएनए को, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस है जहाँ 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है. डायग्राम देखिए नीचे बना हुआ है. रिकॉग्निशन साइट ऑफ HindII 5' to 3' में इसको रीड करिए, GT पायरिडीन प्यूरिन AC. अगर नीचे वाले स्ट्रैंड में भी हम 5' to 3' स्टडी करें, इसको रीड करें, तो क्या होगा, GT PY PU AC पायरिडीन एंड प्यूरिन. ओके, सो अगर हम 5' to 3' में अपर स्ट्रैंड में रीड करें और 5' to 3' में नीचे वाले स्ट्रैंड पर रीड करें, तो यू विल फाइंड द सेम सीक्वेंस इज देयर. सच टाइप ऑफ सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. तो इसका मतलब है रिकॉग्निशन जो है, रिकॉग्नाइजिंग साइट जो है वो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए. यहाँ भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, नीचे देखिए 5' to 3' रीड कर रहे हैं इसको, GAATTC. और नीचे वाले स्ट्रैंड में भी इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रीड करिए, अगेन फ्रॉम द 5' to 3' GAATTC. सो दे आर सेम in two strands. So these are called as palindromic nucleotide sequence where the restriction endonucleases come and attach. यहाँ पर फिर से एक एग्जाम्पल है EcoR1 का कि ये कहाँ से कट करता है. ये GAATTC सीक्वेंस में को रिकॉग्नाइज करेगा पहले और GA के बीच में कट करेगा.
चाहे वो अपर स्ट्रैंड है चाहे वो लोअर स्ट्रैंड है, दोनों में ही GA के बीच में कट लगेगा और कट लगने के बाद दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाएंगे, हाफ हाफ हो गए दोनों स्ट्रैंड्स, और दोनों स्ट्रैंड्स के पास क्या है, कुछ पोर्शन ऐसा रह गया जो सिंगल स्ट्रैंडेड है। नीचे वाले स्ट्रैंड में देखिए TTAA सिंगल स्ट्रैंडेड रह गया, ऊपर वाले स्ट्रैंड में AATT जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड रह गया। तो दीज आर कॉल्ड एज नाउ द स्टिकी एंड्स, दे आर कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड एट लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, बिल्कुल सेंटर में से नहीं कट करता है पैलिंड्रोमिक साइट पर, बट दे कट बिटवीन द सेम टू बेसिस। ऊपर में भी अगर वो GA से कट कर रहा है तो नीचे वाले में भी GA से ही कट करेगा। दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस एट द एंड्स एंड दे आर कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स। यू कैन सी द डायग्राम। इसमें सेकेंड स्टेप पर आ जाइए। फर्स्ट स्टेप पर तो वेक्टर DNA और फॉरेन DNA दिखाया गया है। सेकेंड स्टेप पर इको R1 ने कट कर दिया है इनको GA पॉइंट से। वेक्टर DNA को भी GA पॉइंट से कट किया है और फॉरेन DNA को भी GA पॉइंट से ही कट किया है। इससे हमारे पास दो स्टिकी एंड्स हमको तैयार मिल गए। ओके, दीज आर कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स। और स्टिकी एंड्स को अब ज्वाइन करना है। थर्ड स्टेप पे आ जाइए। स्टिकी एंड्स दे गेट जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। रिमेंबर दिस बॉन्ड। स्टिकी एंड्स को आपस में ज्वाइन होना है तो अगेन you can do it with the help of hydrogen bonds, and this is done by the enzyme called DNA ligases. ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेक्टर DNA और फॉरेन DNA दोनों को ही एक ही एंजाइम से काटना पड़ेगा, तभी हमको स्टिकी एंड्स एक जैसे मिलेंगे और तभी हम उनको ज्वाइन कर पाएंगे। ओके, बाय यूजिंग द DNA ligases enzymes. So third step is complete. और लास्ट में जो हमको अब DNA मिल गया, that DNA is called as a recombinant DNA. हमने दो एंजाइम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस काटने के लिए और फिर लाइगेजेस उनको जॉइन, स्टिकी एंड्स को ज्वाइन करने के लिए, और एज अ रिजल्ट वी गेट द रिकॉम्बिनेंट DNA. यहाँ पर एक फिर से पूरा ओवरव्यू देख लीजिए। ओवरऑल व्यू इसका क्या है। फर्स्ट एंड सेकेंड 2 नंबर लिखे हुए हैं ऊपर। फर्स्ट इज अ वेक्टर DNA, सेकेंड इज अ फॉरेन DNA। और सीक्वेंस जो आइडेंटिफाई करेगा इको R1 एंजाइम वो है GAATTC दोनों साइड पर। और कट कहाँ लगेगा, GA के बीच में। वेक्टर DNA में GA के बीच में कट लग गया है और एक नीचे वाले स्ट्रैंड का जो वो सिंगल स्टैंडर्ड रह गया वो TTAA रह गया उसके पास। फॉरेन DNA में भी इको R1 ने एक्ट किया, अगेन नीचे से कट किया है वो GA के बीच में, और ऊपर का जो स्ट्रैंड था उसका स्टिकी एंड पर क्या है, AATT. नाउ दिस AATT विल कम एंड फिक्स विथ TTAA। कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों के, दोनों स्टिकी एंड्स हैं, दोनों आपस में DNA लाइगेज से ज्वाइन हो जाएंगे एंड फोर्थ नंबर पर हमें DNA रिकॉम्बिनेंट DNA मिल जाएगा। सो दीज सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। रिमेंबर ऑलवेज एंडोन्यूक्लियसेस दे एक्ट ऑन द पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। यहाँ फिर से आप एक डायग्राम के थ्रू आप स्टडी कर सकते हो, ये आपकी NCERT बुक में भी बना हुआ है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। फॉरेन DNA है, वेक्टर DNA है, दोनों में हमने कट लगाना है बाय यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो डिजायर्ड जीन था उसको हमने सेपरेट कर लिया, दोनों में कट लगाएंगे क्योंकि वेक्टर DNA में हमें स्पेस चाहिए जहाँ पर फॉरेन DNA आकर अटैच होगा। जब कट लगने के बाद दोनों को ज्वाइन किया by enzyme called DNA ligases and we get the recombinant DNA in a circular form. Okay, सेकेंड डायग्राम देखिए जहाँ recombinant DNA लिखा हुआ है। अब इस recombinant DNA को थर्ड स्टेप पे हमें क्या करना है, होस्ट में इंट्रोड्यूस करना है। E. coli है होस्ट, और जब जिस होस्ट में इसको इंट्रोड्यूस किया वो ट्रांसफॉर्म हो गया। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। Transformation of E. coli is taking place here by adding the recombinant DNA in it.
So this is the overall view of diagrammatic representation of recombinant DNA technology. And the most important thing about this is, unless one cut the vector and source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant molecule cannot be formed. बन ही नहीं सकता recombinant molecule जब तक कि हम वेक्टर और सोर्स डीएनए दोनों को एक ही एंजाइम से कट ना करें तो. सो वेक्टर डीएनए प्लस सोर्स डीएनए दे टुगेदर फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें होस्ट में भेजना है. दिस इज ऑल अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर. वी आर स्टडिंग इन द चैप्टर. So I hope you must have enjoyed it, you must have understood it. Do the test which is given in the test in the box in the form of MCQs. Subscribe the channel for getting the information about my next video, because next video is related with the same topic. Okay, या उसमें हम vectors के बारे में करेंगे, competent host के बारे में study करेंगे. So in continuation we'll do in the second video. Thank you very much. Thank you so much for staying with me.